Suppose he faced one exams in mathematics and he secured 65. So my question is that whether his performance is, what type of performance is? Is it good or bad or what it is? Can anyone say? हाँ मैडम बोलिए. Sir, as per marks, it is good. Okay. 95%. So you think, As per marks. as per marks, that means you thought that out of 100 it is 65. Generally it's happened. It is Happened. Any other और कुछ और कोई comment? कोई different comment? कोई creative comment? मैडम ने ठीक ही बोले. अगर हम thought that के 100 में तो फिर 65 is good marks in mathematics. और कुछ? also. There is a So different opinion come. So it can be 100 as it is mathematics. It's a scoring subject. So it can be 100, 90, 80. Then it's not good. Is it? और कुछ? एक तो बोलिए good and not so good. और opinion? ये गुड और बैड डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट में वो 65 मिला है. That's the important thing. Very nice. It depends कि कितने students, अगर वहाँ पर 1000 है, 10 लाख students है तो 65 एक हिसाब से ये होगा. अगर 10 student है तो एक हिसाब होगा. That's in one opinion. That means, sir, describe it's a norm reference test. Have you heard these things? There must be or should be one norm. अगर मैं अभी बोल दूं आपको कि उसी ग्रुप का, क्लास का, सेक्शन का एवरेज परफॉर्मेंस इज 50, then you yes, then your statement is right, it will be right. क्या और ओपिनियन हो सकता है? बेसिकली वो वेरी कॉमन. अगर उन्होंने बोल दिया और एक है कि सर पूरा स्कोर को आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए और देखिए उसका पोजीशन क्या है, फिर आप बोल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. कि सर आपका रेफरेंस पॉइंट एक चाहिए. अच्छा क्या यही समाप्त है, क्या और बोल सकते हैं? Sir, his performance may be based on the how the question paper was. Excellent. Tough or If it is a very easy question, their answer will be one time. If it is a difficult question, their answer will be different. Any other? Very good. Very nice. Any other statement? depending on the student's status also. If he is a very good student in mathematics and if he is scoring 65 in mathematics, is not good. And if this student is very not good in That means it depends. That means please. That means it depends on evaluation also. Pattern of questions and also evaluations also. Okay. So there are so many things regarding evaluation. Okay. What we will discuss today? What are the demerits of marking system? What are the demerits of examination system? Why comes CCE into the existence? Continuous and comprehensive evaluation क्यों आया? अच्छा continuous और comprehensive evaluation क्या है? हम सब जानते हैं, फिर भी क्या है? अच्छा why it is called continuous? कुछ भी और भी बोल सकते हैं. Why it is called comprehensive? What is the reason behind it? What are the difference between measurement and evaluation? What is the difference between examination and evaluation? What is the difference between assessment and evaluation? What is the difference between test and evaluation? We have to know. What are the characteristics of good evaluation? What are the purpose of evaluation? Why NAP emphasis on CCE? What
What is the reason behind this? How we can prepare pedagogy through CCE, how we can follow appropriate methodology for instruction or teaching. What are the roles play of evaluation process for students' learning outcome? Why NEP suggested that learning outcome is essential? How CCE helps, or how CCE and learning outcome interlinked? What are the tools required in CCE? Okay, in examination system, what are the tools we follow in examination system? Can anyone? What are the tools we follow in examination system? We will write question paper, which is the tools by which we evaluate the achievement or performance of the students, isn't it? ऐसे ही करते हैं ना? Yes. तो क्या इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? टूल्स क्या है? अच्छा, इवैल्यूएशन जो करते हैं वो टूल्स क्या हम बना सकते हैं? Can we prepare such type of tools? If yes, how we can prepare these tools? अच्छा, all our teachers and faculties of university and colleges, research aspects is there. How we can do research on these aspects also? This is also a consideration. How these tools, whether these tools are applicable for research also? These are the so many questions we can discuss if time permits. Although I have had, for example, 1 hour convert is 2 hours, half an hour, 1.5 or 2 hours. Okay, ready? Yes. Next slide, please. What is CC? Anyone? Right. So there are two terms. One is continuous, another is comprehensive, and another is evaluation. So first of all, we have to know what is evaluation. Okay, before this, we have to know what is measurement. Okay, what is measurement? To measure something, and there must be measurement, there must be quantity or quantifications. Okay, suppose the length of this table is 3 foot. This is measurement. But what is, I am not telling the definition of everything. Just you know all the things, just for the concept. What is evaluation? What hints I am giving? Evaluation depends on measurement. Without measurement, evaluation is not. Evaluation means, suppose I am giving one example. Suppose the heights of 3 persons, A, B, and C, are respectively 4 feet, 5 feet, and 6 feet. This numerical description about the length is known as measurement. But when we say this, C is the tallest and A is the shortest among these three. These qualitative, number 1 point, interpretation, and another important point, value judgment is called evaluation. So in evaluation, there must be two aspects, qualitative and interpretation and value judgment. Okay? What is the difference between examination and evaluation? Examination is a narrower sense. There are some demerits we will discuss so that evaluation comes into the existence. Okay? Examination only based on paper tests, isn't it? Through written exams only, or oral exam is there. Okay, but evaluation is comprehensive. Why comprehensive we will take? Assessment is also a narrower concept in respect of evaluation. Okay. But assessment and evaluation both are process oriented. And there are another two
two terms. One is continuous. Why it is called continuous? Yes. Examination generally held on after 6 months or at the end of the year, but evaluation is a continuous, ongoing process. Okay. And there are so many parameters. And on the other hand, comprehensive. Why it is called comprehensive? Comprehensive, one point is that it is a bigger, it includes all the parameters, every aspect, not only cognitive aspects, it includes effective and psychomotor domains also. We will discuss learning outcomes, then it will be clear. So it is comprehensive. It covers different tools for gathering data, for analyzing, interpreting, comparing the students' performance. Comprehensive. Another important point is why it is called comprehensive, because it covers all the three domains. We can judge our behavior by three domains. In Indian philosophy, it's also discussed in Vedas, Dhyan, Bhakti, and Karma. Cognitive, affective, and psychomotor, which is very, very essential. It covers all the three domains, but examination has no ability to cover all the three domains. But evaluation is a comprehensive, and NEP suggested that it should be CCE, that is called universal comprehensive evaluation. Another dimension is here. So clear up to this, it is CCE, continuous and comprehensive evaluation. Next. We find that in examination very necessary. It's called necessary evil, like blood sugar. Okay. But there are, why it's called? Because there are different problems. Some problems I have mentioned, you know these things. Fail to test real knowledge. Examination system itself fail to test real knowledge. Whether it's to judge the student performance or provide certificate, provide marks, it's fail to test the real knowledge of the students. If we are, evaluation is a very, very important thing. You know this better. As an institute of law, highly essential to judge something. Okay, so examination is a very important thing, but it should be free from biasness, suffer from subjectivity. We generally find that कोई भी एक प्रश्न लिखा, अगर ऐसे टाइप हुआ, 10 टीचर को दिया, तो 10 मार्क्स। इतना बड़ा डिमेरिट एजुकेशन सिस्टम का। हैंडराइटिंग अच्छा है या बुरा है, नंबर चेंज हो जाएगा। उनका मूड ठीक है या नहीं ठीक है, नंबर चेंज हो जाएगा। कितना बड़ा डिफेक्ट। इंडिपेंडेंट एम, कोई डेफिनेट एम ही नहीं है एग्जामिनेशन सिस्टम का, सिस्टम इटसेल्फ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट, बहुत बार हम देखते हैं, रिजल्ट पब्लिश्ड, देन डिफेक्टिव रिजल्ट आ, ऐसा तो मेरा एग्जाम है ही नहीं। रिव्यू करते हैं तो निकल आता है, कभी-कभी नहीं आता है, तो प्रॉब्लमेटिक। Cause of moral depression and malpractices, एग्जामिनेशन सिस्टम ही है कि आपको ये एंजाइटी लेवल इंक्रीज कर देता है। हाँ, सिस्टम ही है कि आपको टेंशन दे देते हैं, कभी-कभी तो नेक्स्ट स्टेज तक चले जाते हैं। बस नेक्स्ट फैकल्टी faulty question papers, already we have discussed. Question paper itself too much easy, too much difficult and faulty. Adverse effect on teaching method, its impacts on teaching methods also. कैसे? एक अच्छा सा प्रश्न तो आ जाएगा, वही पढ़ा दिया, बाकी सिलेबस बना है, बहुत अच्छा सार का पेपर में कितना अच्छा मार्क्स मिल गया। नॉलेज का हाथ होगा, क्वेश्चन बैंक और ये भी आएंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बैंक का क्या मतलब है, वाटर शूट कैसे होता है, बहुत सारी चीज है इसमें।
Adverse effect on health already we have discussed. These are the demerits of exam system. तो इसके बदले में आ गए सीसी. मालूम करना चाहिए. What is the important thing? To overcome these problems, CC come into existence. Okay. अभी प्रश्न है क्या इवैल्यूएशन सिस्टम CC हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये सब देखेंगे नेक्स्ट. इवैल्यूएशन बहुत फंक्शन करते हैं, बहुत ही फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनका. बहुत सारे फंक्शन इवैल्यूएशन सिस्टम तो इवैल्यूएट करते हैं. व्हाट इवैल्यूएट? स्कॉलस्टिक और एकेडमिक. पोस्ट स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज आल्सो इवैल्यूएट. आप म्यूजिक में अच्छे म्यूजिक के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, वो भी उसका कैपेसिटी है, वो भी इवैल्यूएट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं. ओके, तो कर सकते हैं. मेन चीज इवैल्यूएशन का ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग. इसके अलावा वो क्या करते हैं? करिकुलम रिफॉर्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी का करिकुलम. whether the curriculum is appropriate or not, this can be judged by evaluation also. कैसे कैसे कर सकते हैं? सपोज एक करिकुलम हम कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी क्लास का उसको पढ़ा रहा है, लिखा है कि 100% स्टूडेंट्स फेल ऑन दैट करिकुलम. कैसे पता चला? थ्रू इवैल्यूएशन. तो अब एक प्रश्न चिन्ह आएगा कि वो whether this curriculum is good, appropriate or not, so we can reform it. Predict diagnostic purpose. Actually, evaluation basically 4 types. What are the different types of evaluation? If someone asks, it is a 4 types. What are these? Number 1, placement evaluation, diagnostic evaluation, formative evaluation. We know this. Summative. So one purpose is placement. What is placement evaluation? When any teacher coming to the class, he or she have to know the present position of the student. What are the place? Otherwise, he can't. But it's a different. All are faculties. Okay, imagine. So no need. It's placement. What are the position? To know the entry behavior of the students. Diagnostic. Suppose one student has been studying results in mathematics, science, or social science, in any subject. What is the reason behind this? How we can provide remedial instruction? Strong areas. Diagnostic evaluation can do this. Diagnostic, the evaluation purpose. Formative and summative, we all of know, well acquainted with this. We will discuss later on formative and summative. Formative, we know this is an ongoing evaluation. Summative means end of the process. 4 types of evaluation is there and use function or purpose. The evaluation का providing information for grading, reporting to parents and promoting students. Common grading, promoting. Next promotion and reporting to the parents whether the students is doing good or not, and evaluating the effectiveness of teaching method. वो भी purpose है. Motivating the students. Evaluation system itself can motivate the students. Its work as an incentive. Okay. Suppose कोई भी student आप evaluation के बाद कोई भी टीचर उनको प्रेज करते हैं तो वो बहुत ही मोटिवेटेड होकर क्लास के पढ़ाई के लिए. इवैल्यूएटिंग टोटल स्कूल प्रोग्राम, स्कॉलस्टिक, पोस्ट स्कॉलस्टिक, टोटल स्कूल प्रोग्राम इवैल्यूएशन सिस्टम्स कैपेसिटी রয়েছে ইভালুয়েট করা. Evaluation as an instructional tool. One teacher can use the whether my teaching is appropriate or not, we can judge through evaluation systems. So evaluation has use, purpose or functions. Next. This is the important. How evaluation is interlinked with learning outcomes, which is discussed or mentioned specifically in IEP 2020.
Education should be outcome based. Otherwise, it will be meaningless. What are the outcomes? A teacher prepare his or her lesson plan, considering before entering the class, prepare the lesson plan, considering the learning of class. कोई भी टीचर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, मेरे क्लास में एंटर करो या कुछ भी एक क्लास के बारे में बोलो, ऑब्जेक्टिव्स। Uttari Commission 1964-66 mentioned that the destiny of India will be shaped in her classroom. Okay, तो क्लासरूम में कैसे डेस्टिनी शेप होगा? ऑब्जेक्टिव जो अगर ठीक नहीं रहे तो नहीं हो सकता ना। इसके साथ लिंक है लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या हम प्रोवाइड कर रहे होंगे, what type of learning experience we are providing in the class as a teacher, and evaluation, whether they are able to reach these objectives or not, to be judged through evaluation systems. If reached, class कोई भी क्लास, जो लाइफ एस्पेक्ट टीचर फोटोसिंथेसिस पढ़ा, आज लेसन प्लान करेंगे, कोई लेसन प्लान, हम लेसन प्लान, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन लेसन प्लान। एक टीचर का माइंड मैपिंग है उसका लेसन प्लान, कि आज क्लास में जाएंगे और ऐसा ऐसा करेंगे, यही डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जब निकालूंगा क्लास से, तो मैं जो पढ़ाया वो स्टूडेंट को समझ में आना ही आना चाहिए, तो फिर मैं सक्सेसफुल, तो फिर स्टूडेंट पूरा सिस्टम सक्सेसफुल करवाएगा। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा टीचर भी होते हैं कि हम क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए उसका मतलब नहीं, आए पढ़ाए चले गए। टीचर का तो ये ड्यूटी नहीं है, किसी दूसरे प्रोफेशन में थोड़ा बहुत हो सकता है, फाइल मार्क कैलकुलेट वो भी उनको भी करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि टीचर इनोवेटिव, क्रिएटिव, डिस्कवरी ओरिएंटेड, ओके, उनका बहुत बड़ा रोल है। उस रूल में इवैल्यूएशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैसा होना चाहिए? आप तो क्लास में जाते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, हाँ, कैसा होना चाहिए? किसी भी क्लास में पहले क्या होता था, टीचर आए, कोई भी कंटेंट डिस्कस किए, स्टूडेंट जितना बोल पाता है, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन कर पाता है, बोल पाता है, वही स्टूडेंट सबसे अच्छा है। लेकिन मेमोरी बेस्ड, वन सेंटर क्लियर मेमोरी बेस्ड, लेकिन क्या यही सब है? हाँ, इंट्रोवर्ट बोलना नहीं आ रहा है, ठीक, एक पर्सनालिटी डायमेंशन इंट्रोवर्ट, सम एक्सट्रोवर्ट, सम एम्बिवर्ट, हाँ, तो फिर क्या करें? Not only that, NEP 2020 suggested that skillful learning, skill based learning, लर्निंग कर लिया ऐसा नहीं, सर्टिफिकेट मिल गया, ट्रैक में चला देके रख दिया, कुछ काम पे नहीं लगता। बहुत सारे है ना, इंजीनियर बन गए, वो बन गए, वो दिखाई नहीं सकते। अच्छा, वो बोलते हैं हर सब्जेक्ट में स्किलफुल होना चाहिए, क्या हर सब्जेक्ट में स्किल है? सोशल साइंस में यहाँ पर मैं डिफर कर दिया आपके साथ, हर सब्जेक्ट में स्किल है। ओके, एक प्रश्न मैं पूछता हूं, अच्छा, हर कोई क्या क्रिएटिव है? देखिए, और एक बात, कोई भी बोलता है कि नहीं सर, कोई क्रिएटिव है, मैन कैन बी क्रिएटिव, ओके, उन्होंने बोला कि एवरीबडी इंडिविजुअल इज क्रिएटिव, but it differ in degrees and types. It differ in degrees and types. Okay, मैं सपोज कोई साइंटिस्ट को क्रिएटिव है, कोई पोएट क्रिएटिव है, कोई टीचर क्रिएटिव है, कारपेंटर क्रिएटिव है,
Man can be creative not only in painting, writing poetries, or discovering scientific theories, but also in cooking, carpentry, playing football. Everywhere creativity is required. The knowledge is here. Still, there is only knowledge which is not demonstrated and what's the use of. Oh, that's the main things. सारे बोला कि सर नॉलेज इज हियर, नेक्स्ट लाइन में जाइए तो इसका आंसर देखते हैं क्या है क्या है, इतना अच्छा। नेक्स्ट में जाइए ना, ओके छोड़िए इसको, नेक्स्ट में जाइए। हाँ बस बोले नॉलेज यहाँ पर है और स्किल तो यहाँ पर है। इसके बाद It's not demonstrated how. if it is not demonstrated, not approved in the field, what will happen? Everything will go in vain, isn't it? क्या सच नहीं है? इसीलिए जस्ट उनके बातों को सच करने के लिए, इसीलिए एनईपी 2020 बोला कि आउटकम बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। कैसे होगा? हम कोई भी क्लास में जाए तो ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसको बोलता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्यों? क्योंकि क्लास में जब टीचर कंप्लीट कर लेंगे तो उनका बिहेवियर का चेंज होगा। अच्छा, ये बिहेवियर कैसे चेंज होता है? कितना डोमेन है? 3 डोमेन है। उन्होंने जैसे बोला, नंबर 1 डोमेन कॉग्निटिव, नंबर 2 इफेक्टिव, नंबर 3 साइकोमोटर। अच्छा, उसके साथ आउटकम बेस्ड एजुकेशन का लिंक क्या है? 3 डोमेन के साथ लिंक है। जब कोई टीचर इवोल्यूशन से पहले क्लास में जाएंगे और पढ़ाने के शुरू करेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे, आज क्लास में क्यों आए, तो वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा 3 डोमेन के हिसाब से, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। अगर होता है इसके साथ लिंक है इवोल्यूशन, जजमेंट भी उसी हिसाब से होगा। कॉग्निटिव डोमेन सक्सेसफुली हुआ, इफेक्टिव डोमेन सक्सेसफुली हुआ, साइकोमोटर डोमेन सक्सेसफुली हुआ, होगा तो क्या होगा? होगा तो नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, तीनों जो मेन एम्बिशन होता है टीचिंग का, वो फुलफिल हो जाएगा। तो इंसान जो सीखने के लिए आया वो सीखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ भी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो, लॉ हो, वो सीखेगा। पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो, सीखेगा। नेक्स्ट, अच्छा, ये कॉग्निटिव डोमेन नेक्स्ट, कॉग्निटिव डोमेन नेक्स्ट, कॉग्निटिव नेक्स्ट देते रहो। कॉग्निटिव डोमेन क्या है? बस कॉग्निटिव डोमेन क्या है? कॉग्निटिव, बस सुन लीजिए, कॉग्निटिव एक लाइन में जिंदगी भर याद। कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड विद नोइंग एस्पेक्ट, थिंकिंग, ब्रेन। ओके, affective domain is related with feeling aspect, related to heart. Psychomotor domain is related to doing aspect, related to hand eye coordination. उन्होंने कैसे बोल दिया कि सर इसके साथ डेमोन्स्ट्रेशन है, hand eye coordination and skills will come, otherwise it will not. ज्ञान, भक्ति and कर्म। ओके, नेक्स्ट। अच्छा देखिए, आउटकम बेस्ड लर्निंग, कॉग्निटिव डोमेन हमने बोला ज्ञान, इट्स रिलेटेड टू नोइंग एस्पेक्ट, थिंकिंग रिलेटेड टू हेड, अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड टू हार्ट, साइकोमोटर डोमेन रिलेटेड टू हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एंड व्हाट टाइप ऑफ development fostered by education, mental, intellectual, moral and spiritual through cognitive domain, and heart related to emotional, aesthetic, cultural values, receiving, responding. अच्छा, क्या हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं? कोई स्टूडेंट को हमारा इतना हम एबिलिटी, not such type of abilities, वो सीखेगा खुद, ठीक है?
तो अगर वो सीखना नहीं चाहते, क्या हम सिखा सकते हैं? नेवर। तो हम तो कभी इसके इफेक्टिव डोमेन को मानते ही नहीं। भाई कुछ भी हो जाए, तुम्हारा मन क्या है, एंजाइटी क्या है, मन खराब क्यों है, वो सब छोड़ो, आए हो और सीखो जाओ। Do not consider effective domain. And psychomotor domain, motor skills, fine arts, game sports related to everything. Okay, next. So there is this that by giving that Next. it's called the PACE approach, knowledge skill attitude. It says that by gaining some knowledge and gaining some skills, there is a possibility that there will be a change in attitude. So it is not guaranteed, but there might be change. Okay. Yes, sir. Next. अब next. बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछ दिया। कॉग्निटिव, एफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन को कोई लाइन नहीं, तो तीनों इंटररिलेटेड। नंबर 1 और नंबर 2, ये तीनों को हम कैसे क्लासरूम एटमॉस्फेयर में सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट करें कि स्टूडेंट का तीनों का हो, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड तीनों का ही फुलफिल हो, उसके लिए रास्ता है, दैट इज इन स्कोप। कैसे मैं दिखाता हूं। Bloom's 1958 B.S. Benjamin S. Bloom, अमेरिकन मैथमेटिशियन। ब्लूम ने टैक्सोनॉमी किया, टैक्सोनॉमी के किस तरह से काटने से, टैक्सोनॉमी इज क्लासिफिकेशन, बोटनी में टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स। उन्होंने जो किया है वो कॉग्निटिव डोमेन के लिए करा है। सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के 6 भाग, 6 steps from lower to higher: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation। ये सब कंसीडर करेंगे तो किसी का कॉग्निटिव डोमेन सक्सेसफुली होगा, किसी भी टॉपिक का होगा। कैसे करेंगे? नेक्स्ट। नॉलेज मींस रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन, मेमोरी, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। If I have discussed in the suppose in the classroom one topic, and after that if students are able to recall it, then this will knowledge is overcome, knowledge is the objective is fulfilled. Comprehension, understanding the meaning by the student, concept is clear or not, we have to consider in the classroom when preparing behavioral objectives. Application, using the information, अगर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे कोई नॉलेज का, उसका कोई काम नहीं। ठीक है। एप्लीकेशन, एनालाइसिस, ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स, कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करना पता है क्या नहीं। एंड सिंथेसिस, सेम जस्ट ऑपोजिट प्रोडक्ट्स एंड न्यू और होल, एंड इवैल्यूएशन, जजिंग द प्लान। ये सब होंगे तो हमारा कॉग्निटिव डोमेन फुलफिल होगा। कैसे करेंगे कि लर्निंग आउटकम बेस्ड कैसे होगा? नेक्स्ट। सपोज नेक्स्ट में जाइए। ओके, पहले आगे वाला मैं ठीक है। सपोज नॉलेज डोमेन को हमको फुलफिल करना है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक का, उसका ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना है, तो हम कैसे करेंगे? देयर आर सम प्रिपेयर्ड एक्शन पार्ट। सपोज कभी हम ऐसा बोलेंगे कि डिफाइन, रिकॉल, लिस्ट आउट, तो वो नॉलेज डोमेन को फुलफिल करेंगे। अगर हम ऐसा बोलेंगे नेक्स्ट में आप अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन कैसे करेंगे? कोई भी नेक्स्ट में कोई भी स्टूडेंट को हम पूछेंगे कि समराइज करो किसी कॉन्सेप्ट, समराइज तभी कर पाएगा जब उसका कॉम्प्रिहेंशन ठीक रहेगा। और कभी हम बोलते हैं कि डिस्क्राइब करो, कॉम्प्रिहेंशन क्लियर नहीं हो तो डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। ओके, इलस्ट्रेट करो, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है तो नहीं कर सकते। What are these? These are called action bar. Why? To prepare the learning outcome based objectives to teach properly in the classroom. एक या इस चीज पे कॉग्निटिव डोमेन में चल रहा है, एफेक्टिव होगा, साइकोमोटर होगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का एक्शन भाग क्या है? जब हम पूछेंगे कि यूज, then action it will be under application domain. Solve, apply, these are the action bar. Each of action bar is there.
Okay, in internet also available. Bloom's taxonomy. Next, analysis, analyze, categorize, compare, contrast, separate. These are the action verbs for framing the behavior of objectives, outcome-based objective in the classroom atmosphere. Next, synthesis is the same, to integrate product, to give the new idea, original ideas, synthesis. Okay, next. Evaluation, judge, recommend, critique, justify. If I ask the justify, prepare the objectives, justify, then this will come. Next. This is the total structure of Bloom's taxonomy with outcome based. Suppose I am giving just one example. Suppose knowledge. Knowledge is what? Recall and recognition. Okay. Suppose we are discussing the chemistry subject. What will be our outcomes? By the end of the chemistry program, the student should be able to list out all the elements of periodical tables. Okay. Action bar for that, define, describe, identify, name, outline, select, state, arrange, memorize. Simple. In these ways, there are huge criteria, domain, knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, evaluation. Who prepared it? Benjamin S. Bloom in 1958. Next. Same, in the same way. In the same way, affective domain also. There are 6 categories. Affective domain related to feeling aspects. Whether students are ready to learn or not, we have to consider. So they are like receiving, responding, receiving, responding, valuing, organization, and characterizations. These are the main sub-domains. Receiving means willingness to learn. Responding, active participation. Whether students are ready to learn, they are actively participating or not. Valuing, internalization, the worthiness, trial and error. Organization, ability to see the value. And characterization, behavior consistent with the value system. Next, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे उसके लिए भी एक्शन बार पूरा सिस्टम किया हुआ है. सपोज रिसीविंग में listen, response, answer, valuing, demonstrate, organization, and internalizing takes action. In this way, use list is there. Next, psychomotor domain. Already you know that it's a hand-eye coordination related to skills. Skills. There are again in Simpson and Kibler in 1966 and 70s prepare the domains. Next. Next. Imitation, manipulation, precision, articulation, naturalization. These are domains. कैसे प्रिपेयर करेंगे? एक्शन भाग क्या है? नेक्स्ट. Use action verb. Suppose imitation, observe a skill and attempt to produce it, pattern behavior after something else. Action verb क्या होगा? Attempt, carry out, copy, follow, imitate, produce, respond, try. इसीलिए एनएलपी ने बोला है कि हर प्रोग्राम में हैंड्स ऑन होना चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए. Sir, can you please share this material with us? Okay, I will. Next. Oh, this. Formative and summative. हम तो ये तो बहुत परिचित है formative and summative. ब्लूम्स के ओरिजिनल एक किताब है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन. वो कितना बड़ा कंटेंट है, इतना वॉल्यूम है. फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, इसके ऊपर इतने काम हो सकते हैं. इवैल्यूएशन ऐसा एक टॉपिक है, पीछे पड़ा हुआ है 90 स्लाइड्स पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, लेकिन टाइम है हमारे पास. तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? इट्स एन पीरियडिकल टेस्ट. उसके फॉर्मेटिव के साथ सीसी और समेटिव के साथ सीसी बहुत वीक है.
continuous and comprehensive. Periodical test, on the other hand, summative is a final test, end of the course evaluation. अच्छा, उसमें क्या होता है? फॉर्मेटिव के एम्बिशन क्या होता है? एम्स टू फॉर्मिंग लर्निंग. समेटिव ये नहीं देखते हैं कितना सीखा कितना नहीं सीखा, वो हमारा मतलब नहीं है. तो सम ऑफ द टोटल अचीवमेंट वो भी जरूरी है. अचीव कितना किया, परफॉर्मेंस कितना है, वो देखते हैं समेटिव. लेकिन फॉर्मेटिव क्या करता है? लर्निंग हुआ कि नहीं हुआ. इवैल्यूएशन का पर्पस ही है लर्निंग एंड remedial instruction and guide the students properly. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? क्या क्या बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि हमारा सिस्टम अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में कभी-कभी 40 60 और 70 30 ऐसा करके मार्क्स है. इंटरनल असेसमेंट है, और इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या है? क्विज, असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट, शॉर्ट टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वाइवा, सेमिनार, प्रोजेक्ट. नया एनईपी ने जुड़ कर दिया इंटर्नशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है. ओके, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टेस्ट. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज रेमेडियल. क्यों? फॉर्मेटिव इज ऑनगोइंग इवैल्यूएशन. अगर क्लास में कुछ नहीं सीख पाए कोई यूनिट में, उसका जब जितना तक उसका कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट में नहीं जाएगा. क्यों? रेमेडियल टीचिंग इज देयर. ओके, नेक्स्ट समेटिव एंड अचीवमेंट एंड ग्रेडिंग टेस्ट. वो अचीवमेंट कितना हुआ और ग्रेड देगा, उसका भी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस तो ग्रेड कैसे? ग्रेड ठीक है क्या नहीं, ग्रेडिंग. प्रोसेस ओरिएंटेड इज फॉर्मेटिव, ऑन द अदर हैंड समेटिव इज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड. It covers all the units in summative evaluations. It covers whole unit, one unit and whole unit. And in formative evaluation, it includes different types of tools. Okay, we'll come in the next. The tools. Only paper pencil test is possible in summative evaluation. In formative evaluation, it provides feedback. On the other hand, in summative, it only provides the information about students standing in the group. What is the position of the students in the group? Okay, next. NEP 2020 suggested that curriculum component, what should be the curriculum component before the SSC or evaluation? We have to know this. Curriculum component पहले जैसा ही है, नया थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है इंटर्नशिप. Okay, 1968 policy, education policy, 1979 policy ने ऐसा सजेशन दिया था. इंटर्नशिप नहीं था, सेम है. करिकुलम में क्या क्या रहेगा? थ्योरी हर सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट in undergraduate level, project in PG, project in PhD. This is also a project and internship. Why NEP suggested such type of curriculum component? Because one concept they have described in NEP 2020, that is the holistic development. If you want holistic development, total development, whole development of a student's personality, then we have to consider these things. And in these directions, evaluation has a huge role. Next, components to assess and associates. वही जो करिकुलम में है, वही कंपोनेंट को कैसे हम एसेस करें, इवैल्यूएट करें, और कौन करेगा? पहले क्या होता था? पहले कौन करता था? ओनली टीचिंग. अभी एनईपी ने सजेस्ट किया है सेल्फ इवैल्यूएशन, एंड सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन. ओके, मेरे पेट में दर्द है, मैं ही बोल सकता हूँ किस टाइप का दर्द है, क्या है, क्या नहीं. बाकी लोग नहीं बोल सकते. आइडिया कर सकते हैं, डॉक्टर भी आइडिया करके मेडिसिन देता है एमएससी से पहले. वो आइडिया कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं भी लगता है. तो टीचर को बात याद रखना इवैल्यूएशन की. दैट इज टीचर इवैल्यूएशन, पीआर इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट इन एडोलेसेंस पीरियड. कि पीआर बहुत कुछ जानते हैं जो पेरेंट्स नहीं जानते.
हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का, और बिहार बहुत अच्छी तरह इवैल्यूएट कर सकते हैं कोई किसी को। एंड टीचर तो है ही है, क्या क्या इवैल्यूएट करना पड़ेगा? थ्योरी अगेन जो भी पढ़ाया हो, प्रैक्टिकल कोई प्रैक्टिकल है तो जरूर इवैल्यूएट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सेमिनार, हर सब्जेक्ट के हर विषय में सेमिनार होना चाहिए। इवैल्यूएशन कैसे होगा सेमिनार का? हम बहुत पहले से हमारे पास में खुद जो प्रोसीड्यूर अप्लाई करते हैं वो हम शेयर करते हैं। क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 5-6 ग्रुप पर डिवाइड करके, लेकिन नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ग्रुप सेमिनार 5-6 ग्रुप, उसी ग्रुप का प्रेजेंटेशन होगा, प्रिपेयर करेगा, प्लानिंग टॉपिक दे देते, टॉपिक के ऊपर सेमिनार का अपने पास रेडी करेगा, टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन रेडी करेगा, पीपीटी, उसके ऊपर मार्क्स, प्रेजेंटेशन कैसे दिया, 10 मार्क्स सपोज, टोटल 50 मार्क्स। प्रश्न क्या क्या पूछे और कैसे रेस्पॉन्स किए, उसके ऊपर मार्क्स। प्रश्न नहीं पूछे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, पीआर को प्रश्न पूछना ही है, उसके ऊपर मार्क्स। इसके बाद कैसे वो डिफेंड किया उसी प्रश्न का, उसके ऊपर मार्क्स। और लास्टली ये रिपोर्ट जमा देना पड़ेगा, कैसे इस रिपोर्ट के ऊपर मार्क्स। इस तरह से मार्क्स डिवाइड करके हम सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा करने से इसी टाइप का इवैल्यूएशन बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, स्पेशली फॉर सोशल साइंसेस। स्किल डेवलपमेंट, हर सब्जेक्ट में स्किल्स का ऑप्शन है, स्कोप है, हर सब्जेक्ट में। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें स्किल नहीं है। हम उसको देते हैं और नहीं देते, एक्वायर करते हैं और नहीं करते। नेक्स्ट सर दोबारा नहीं इंटर्नशिप, हाँ वो सेल्फ और पीयर का दोबारा अच्छा इंटर्नशिप सेल्फ एंड पीयर समझ लो। इंटर्नशिप उसका भाई इवैल्यूएशन कैसे होगा? इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे? एक मेंटर का कॉन्सेप्ट आता है। कोई भी कंपनी में, इंडस्ट्री में, किसी भी जगह पर जाएंगे, मेंटर रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे, हर डे टू डे क्या क्या सीख रहे, क्या क्या करेगा, एक डायरी के बोल दिया, डायरी पर वो पूरा नोट रहेगा, उसको ऊपर इंटरनल मार्क्स मिलेगा। फिर एक्सटर्नल आएगा, फायदा होगा, क्या सीखा, हाँ डायरी में ठीक करना होगा तो जाएगा। उन्होंने पूछा है पीयर एंड सेल्फ, पीआर एंड सेल्फ। अभी तक हमारे यहाँ पर पीआर और सेल्फ इवैल्यूएशन एग्जिस्ट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि सेल्फ इवैल्यूएशन, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ही बोल सकते हैं क्यों नहीं आ रहा, आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता जिंदगी में कि ये चीज हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, हमको नहीं क्यों आ रहा है, व्हाई इट्स आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, और आपको रिकवर करना पड़ता है खुद। तो आप इवैल्यूएट करें, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। और पीआर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसा मानना होता है कि जो पीआर होता है वो आपको अच्छी तरह से जानता है, आपका नेचर, इंटरेस्ट। सपोज आपका किसी का मैथमेटिक्स के बार फेल आ रहा है, आपको भी समझ में नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन पीआर बोल सकता है उसको तो मैथमेटिक्स अच्छा ही नहीं लगता, तो कैसा है, ये तो म्यूजिक बहुत अच्छा है, म्यूजिक का इसी तरह कॉन्सेप्ट आया है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी। सर एज ए टीचर ये जो है, ये दोनों जो है मैकेनिज्म्स कैन बी यूज्ड। Formally you cannot use this, not able, because mechanism is not there. But informally we can, but it will come into existence. NEP के जितने भी इम्प्लीमेंट है सजेशन है, सब तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गए, बाकी सब आते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या है ये? Tools and techniques for evaluation, and it's related with your research. Research work. Why? Because in research also we require information, data. The tools help us, data can research, and evaluation also.
एक ही टाइप का टूल्स दोनों जगह पर यूज होता है। ओके, एक ही टाइप का टूल्स दोनों जगह पर यूज होता है। What is the difference between tools and techniques? Can anyone say? What is the difference between tools and techniques? ऐसे ही पूछा प्रश्न, ऐसे नहीं जज करने के लिए नहीं, ऐसे ही पूछा कॉन्सेप्ट के लिए। तो हाँ, What to use, where to use, how to use. What to use, where to use and how to use. what? Techniques. Who will discuss now? Okay. What to use? Why to use? How to use? What tools? Okay. But before this, I asked that. What is the difference between tools and techniques? Simple, very. Techniques refers to the mode of collecting evidence or data. Mode. How we are collecting. And methods. Yes. And tools is the instrument for collecting the evidence. What are the different types of techniques? There are 4 types of techniques generally used in evaluation of research also. Testing, observation, inquiry, analysis. Testing, suppose I am giving example. It's not visible, no? I am giving example. Suppose evaluation. How it's using in evaluation? Suppose in evaluation is a process. Evaluation is a process. Testing is a technique. Question paper is a tool. Clear? Next. There are different types of tools. Tools. Suppose in test can be 2 types. Verbal, non-verbal tests. Suppose verbal tests, there are so many standardized tests and non-standardized tests. Standardized and non-standardized. Okay, verbal may be written or oral, and standardized and non-standardized tests. Standardized test means which is established, uniform measurement procedure is there, and which is authentic and good. Standardized. Suppose one intelligent test, Venus-Simons scales, intelligent test, personality test, Rorschach-Inkblock personality test, standardized test, standardized achievement test is there, and non-standardized test means teacher-made test. That is question paper for measuring the achievement level of a student in a particular subject. Teacher prepared this, so it's called teacher. What is the difference between these two? Standardized test and teacher-made test. However, teacher-made test measures properly any dimension. क्या हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं? आपका इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर, एंजाइटी लेवल, एग्जामिनेशन एंजाइटी, आपका इंटरेस्ट, आपका मेमोरी कैपेसिटी, क्या सब मेजर कर सकते हैं? नो। हाँ? बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बहुत दो सवाल आ गए, नहीं सर, और बियॉन्ड आवर कंट्रोल वी कांट मेजर। कोई दूसरा ओपिनियन? सब एक है, मेजर नहीं कर सकते। एक शब्द आया है डिग्री ऑफ एंजाइटी का एंजाइटी तो पूरा नहीं मेजर कर सकते, लेकिन एक डिग्री मेजर कर सकते हैं, मींस लेवल कितना है एंजाइटी का तो मेजर कर सकते हैं। बाकी इंटेलिजेंस भी नहीं मेजर कर सकते। और इंटेलिजेंस उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हैं, क्या इंटेलिजेंस के लिए कुछ टेस्ट है, आईक्यू बोला है, सुना है ना? आईक्यू मींस इंटेलिजेंस कोशिएंट, कर सकते हैं, लेकिन आईक्यू कोई टेस्ट नहीं है। आईक्यू एक रेशियो है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, तो मैं क्या बोलूं? देखिए
इवैल्यूएशन के लिए तो ये सब चाहिए। पर्सनालिटी कैसा है, एंजाइटी लेवल क्या है, स्टूडेंट के स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप वो सब चाहिए इवैल्यूएशन के लिए। लेकिन वो तो बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते। So we worked in a class which has 60 or even above 60 number of students. So it's supposed to be a ratio of 1:40, and it's beyond that. So it's beyond our control. Sometimes our ability also. Oh, that's the practical issue. That's some summary. Okay, I'm telling the theoretical aspects. Theoretically, whether we are theoretically able to measure or not, but it's a practical issue. We can't do this. All the tests I can now apply this test in the classroom atmosphere in all days as a teacher. I have to see complete my syllabus also. It's not possible. It's not feasible. We can prepare But for the question is that whether we are able to measure the intelligence, personality, memory, interest in some taking behavior or anxiety level, these things can we measure? To some extent. They are the main thing. Yes. The answer is that yes, we can measure, but up to some extent. That means there are some error. We have to consider this error. Why this is happening? अच्छा, क्या हम स्केलिकल मेजर कर सकते हैं? कोई भी स्केल से मेजर कर सकते हैं? अभी मेजर किया तो मिला 3 फुट्स, ठीक है? अभी मेजर किया, अभी बाद मेजर किया, खाने समय मेजर किया, ये रिजल्ट सेम। जब भी मापता हूँ एक ही रिजल्ट आता है। लेकिन अभी आप सब लोगों का इंटेलिजेंस मेजर कर दिया, या तो क्या बोलिए, रीच टेकिंग मेजर कर दिया, एग्जामिनेशन एंजाइटी मेजर कर दिया, या सीसी एटीट्यूड टुवर्ड्स सीसी मेजर कर दिया। एटीट्यूड भी मेजर कर सकते हैं, तो मेजर कर दिया, जाने समय मेजर किया, 7 दिन बाद मेजर किया, 2 महीने का बाद मेजर किया, रिजल्ट अभी बोलते हैं कि मेजर कर सकते हैं, अभी सेम नहीं। अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? बिकॉज़ इट्स अ फिजिकल मेजरमेंट एंड दैट इज अ मेंटल एंड एजुकेशनल मेजरमेंट। These two are different. Mental and educational measurement changing. Experience का उसका impact आ जाता है। आज इंटेलिजेंस मेजर किया, 1 महीने के बाद करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका फिजिकल मेजरमेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स इन मेजरमेंट। आप जानते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। तो चारों स्केल यूज होता है। तो हमारा फिजिकल मेजरमेंट में कौन सा स्केल यूज होता है? रेशियो स्केल, which has 3 dimensional magnitudes, equal interval, absolute 0 point, and numerical evidence. Everything is there. But in mental and educational measurement, we are using generally interval scales, and there we consider there are some errors. Up to 20% error we consider. 80% करेक्ट हो सकता है, लेकिन 100% करेक्ट नहीं हो। लेकिन we can measure everything. How? Different techniques. One technique mentioned standardized test. Standardized means uniform. And standardized test available in market. You can order through online. In India, 25 companies, established companies there, who are preparing the tools and tests. Why? Because it's used in research purpose in social sciences. सोशल साइंस में यूज होता है रिसर्च के लिए, तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अवेलेबल है। अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इवैल्यूएशन के लिए टीचर की बात भी होना चाहिए। ये डिफरेंट स्कूल में है, विदेशों में तो पूरा सभी स्कूलिंग में है। कौन यूज करता है? गाइडेंस ऑफिसर। गाइडेंस ऑफिसर क्यों? डिफरेंट रीजन। एक स्टूडेंट मिल रहा है बहुत ही इंटेलिजेंट टेस्ट के आपके पास, एक स्टूडेंट मिल रहा है बहुत ही डिप्रेसिव, frustration scales we have to apply. I have to apply standardized test for guiding properly. उसको गाइड करना है। हाँ, रिसर्च के पर्पस, इवैल्यूएशन के पर्पस, साइमल्टेनियस। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बहुत सारे नाम है यहाँ पर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में बहुत से टेक्निक है, उसके अंडर में टूल्स ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ओके, एंड इंक्वायरी में क्वेश्चनियर कॉमनली यूज्ड, चेकलिस्ट, ओके, रेटिंग स्केल, एनालिसिस में
case study, projective techniques, different types of tools is there. Next. देखिए क्वेश्चन कितने टाइप का हो सकता है। एक क्वेश्चन टीचर कितने टाइप का हो सकता है। मैंने पहले ही बोला था कि मॉडरेशन और क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है इवैल्यूएशन। कॉन्टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन हो सकता है 3 टाइप्स, इंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। फंक्शन के हिसाब से हो सकते हैं डायग्नोसिस, ग्रेडिंग, रीइंफोर्समेंट। पर्पस के हिसाब से हो सकता है इंप्रूवमेंट, सर्टिफिकेशन, सिलेक्शन, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सर्टिफिकेशन, क्वेश्चन फॉर सर्टिफिकेशन, क्वेश्चन फॉर इंप्रूवमेंट। मूड के हिसाब से हो सकता है ओरल, रिटन, परफॉर्मेंस बेस्ड। मीडियम के हिसाब से हो सकता है वर्ड, डायग्राम, एक्टिविटी। फॉर्मेट के हिसाब से हो सकता है सिलेक्शन टाइप, सप्लाई टाइप, रीअरेंजमेंट टाइप। स्कोप के हिसाब से हो सकता है एक्सटेंडेड रिस्पांस, रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस, फिक्स्ड रिस्पांस। फॉर्म के हिसाब से हो सकते हैं लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइम which is very essential. कंटेंट के हिसाब से हो सकता है फैक्ट, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो सकता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हो सकता है इजी, एवरेज, डिफिकल्ट। कितने सारे टाइप हो सकते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट है बहुत, हम जनरली करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के भी बहुत फॉर्म है। एक फॉर्म हम जनरली यूज करते हैं, बहुत सारे फॉर्म है, कंपैरिजन, ट्रू फॉल्स, मैचिंग टाइप, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस के कितने टाइप है, बहुत सारे। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस के बहुत सारे वैरायटीज है, एक वैरायटी नहीं है। यहां पर मैंने मेंशन किया 10 वैरायटी, ओनली MCQ 10 टाइप्स। नेक्स्ट, मैं नहीं बोल रहा हूं, जस्ट सिंगल रेस्पॉन्स वैरायटी। ओके, मेंशनिंग द नेम। नेक्स्ट, multiple response variety, based response variety, sequence response variety, कौन सा sequence चाहिए। Next, negative response variety, all or none response variety, cause effect variety, diagram based response variety, analogy type items, assertion reasoning variety। ओके, इतने सारे वैरायटी क्यों? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के डिमेरिट्स है ना, आप बोलते हैं कि वो सब ठीक नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऐसे कांसेप्ट क्लियर नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम, सब कुछ होता है, फिर करना 10 वैरायटी में सब कुछ आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका पूरा थॉट ठीक है कि अंडरस्टैंडिंग, कांसेप्ट सब, ऐसा नहीं है ओनली मेमोरी बेस्ड, ऐसा नहीं है ओनली ठीक देने से हो जाएगा, लेकिन प्रिपेयर करना पड़ेगा टाइप्स। ठीक है, इसी में ज्यादा डिस्कस नहीं कर, नीचे बहुत सारे हैं तो नीचे। नेक्स्ट, ओ नहीं, रेटिंग स्केल एक टाइप आपने देखा है। अरे चेकलिस्ट पहले वाला चाहिए, आगे आगे। ठीक है, चलिए। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, अनदर टूल्स फॉर इवैल्यूएशन एंड रिसर्च आल्सो। दिस इज फॉर स्कूल फैसिलिटीज, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल फॉर स्कूल फैसिलिटीज। नेक्स्ट, इंटरव्यू, अनदर टूल। Interview are different types, generally three types: structured, unstructured, semi-structured. Okay, we know this thing. Next, taste, which is very important. Next, what are the different types of taste? मैंने बोला था कि बहुत सारे टेस्ट हैं, सोशल साइंस में यूज होता है, different aspects, different dimension of creativity. We can measure creativity also. Teaching creativity, effectiveness of teaching, we can measure. जरूरत भी हो सकता है, बहुत सारे सोशल साइंस के रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल्स, ये टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, जो भी डायमेंशन ढूंढिए और मिल जाएगा। लेकिन एज ए रिसर्चर हमारा थीसिस के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, और के लिए टूल्स हमको खुद को बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, ऐसे 10 क्वेश्चन दे देने से नहीं होगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा।
इंटरव्यू शेड्यूल में ऐसे नहीं होगा। कैसे हम इसको बना सकते हैं, बनाने वाला तो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। मैं बहुत सारी ब्रीफली बोलूंगा बनाने के लिए, तो स्टेप्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। कैसे बनाएं इसको? तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं? टीचर इवैल्यूएशन, प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए उनको कुछ क्राइटेरियाज है, उसको फॉलो करना होगा। कुछ क्राइटेरियाज है थ्योरेटिकल क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया है प्रैक्टिकल क्राइटेरिया। थ्योरेटिकल क्राइटेरिया सपोज किसी भी एक डायमेंशन का नाम ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का नाम ले लीजिए, कोई भी, कुछ भी, मैं उसी से एग्जांपल दूंगा। आपका रिसर्च का एक वेरिएबल का नाम बोल दीजिए किसी का। आपका बोलिए क्या? ठीक, पूरा तो नहीं ले रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके साथ लिंक है क्रिएटिविटी और इनोवेशन, है कि नहीं? तो उसको ले लेते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ क्रिएटिविटी बहुत ही लिंक है, तो उसको ले लेते हैं कि क्रिएटिविटी क्या हम मेजर कर सकते हैं और क्या हम क्रिएटिविटी का टेस्ट खुद बना सकते हैं? अगर कैसे बनाएं? एनालिसिस करना चाहिए। प्रैक्टिकल क्राइटेरिया बहुत सारा है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट में जाइए, में क्या क्या रहेगा टेस्ट के बारे में? एक बैकग्राउंड, एक आइडिया, एक इंट्रोडक्शन, एक रिव्यू रहेगा। उसमें क्या रहेगा? पर्पस ऑफ द टेस्ट लिखना पड़ेगा, कौन सा ग्रुप के लिए, कौन सा एज के लिए क्या पर्पस है। एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्केल, कैसे प्लान किया है, कैसे डेवलप किया है, वो लिखना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी कॉन्सेप्ट, क्या डायमेंशन है, क्या नहीं है, कितने सब कैटेगरी है, वो लिखना पड़ेगा। कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। वो टेस्ट ट्रेनिंग में आएगा, कौन सा फॉर्म में होगा, बार बार, नॉन बार बार होगा तो कैसे होगा, क्वेश्चन बेस्ड, रेटिंग स्केल टाइप और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स टाइप कैसे होगा, सिचुएशन और स्पेसिफिक कैसे होगा। फिर ट्रायल आउट करना पड़ेगा एक सैंपल के ऊपर उसका देखने के लिए। फिर आइटम एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर स्कोरिंग सिस्टम रेडी करना पड़ेगा, पॉजिटिव आइटम को कैसे करें, फिर नेगेटिव आइटम को कैसे करें, पूरा डिटेल्स। फिर रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा स्टैटिस्टिकली, फिर वैलिडिटी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा स्टैटिस्टिकली, फिर स्टैटिस्टिकल रिजल्ट देना पड़ेगा, उसका स्टूडेंट्स का परसेंट वगैरह सब नॉर्मलिटी है क्या नहीं। फिर नॉर्म्स एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर मैनुअल रेडी हो जाएगा। फिर आपका टेस्ट स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन क्वेश्चन है, नेक्स्ट में जाइए। अच्छा छोड़िए सब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्राइटेरिया है वो सब बेसिक जस्ट ब्रीफली बोल रहा हूं। रिलायबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश करें और रिलायबिलिटी क्या, एक आइडिया दे देता हूं, तो जब आप क्वेश्चन भी बनाएंगे ना एग्जाम के लिए एज ए फैकल्टी मेंबर, तो आपको दिमाग में रहेगा। रिलायबिलिटी of a test. Reliability means, अच्छा ये स्केल का बहुत रिलायबल है, स्केल का रिलायबिलिटी बहुत अच्छा है। क्यों? इस स्केल से जितना बार स्केल का लेंथ मापता हूं वो सेम रिजल्ट देगा। So what is reliability? Reliability is the consistency of measurement. Reliability is the consistency of measurement. अगर बार-बार आपको एक ही रिजल्ट आता है तो टेस्ट रिलायबल। सोशल साइंस में एक पर्सनालिटी टेस्ट, एक क्रिएटिविटी टेस्ट बनाया, उसी टेस्ट से बार-बार मेजर करूंगा तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर आएगा तो टेस्ट। अच्छा, ये रिलायबिलिटी किसी टेस्ट का है क्या नहीं है, कैसे एस्टैब्लिश करूं? स्टैटिस्टिकल से मेथड क्या है? डिफरेंट मेथड्स, बहुत 4 मेथड यूज होता है 4 टाइप के टेस्ट के लिए हिसाब से। जैसे टेस्ट रिटेस्ट मेथड, टेस्ट रिटेस्ट, क्योंकि बार-बार मारता है ना। टेस्ट रिटेस्ट वो क्या है? सपोज आपने टेस्ट बनाया, क्रिएटिविटी टेस्ट, उसी टेस्ट
सेम ग्रुप के ऊपर एक सेम ड्यूरेशन लेके 2 बार करना अप्लाई। तो एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y। x टेस्ट का रिजल्ट, ये जो पहले बार किया था, दूसरा y रीटेस्ट का। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल r प्रोडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r करेंगे। r का जैसे क्या होगा, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट निकलेगा। r का मान अगर 0.70 से 80 ऐसा ऊपर आ गया तो टेस्ट रिलायबल, सिंपल तरीका। दूसरा तरीका स्प्लिट हाफ मेथड। अच्छा, टेस्ट जिसमें दिक्कत दोबारा में एक्सपीरियंस हो सकता है, कितना ड्यूरेशन देंगे, 7 दिन होता है कोई 12 दिन। ओके, तो इसके बदले में क्या आएगा, पैरेलल फॉर्म, सॉरी स्पीकर बात है, पैरेलल फॉर्म। उन्होंने सोचा है कि दोबारा हम इसको योग करेंगे। एक पेज बनाया पीडीपी का, इसका फॉर्मेट नाम दिया ए, दूसरा पेज बनाया उसका नाम दिया बी। सेम टेस्ट बनाना पड़ेगा, तो दोबारा एडमिशन करना जरूरी है। ए एडमिशन कर दिया, स्कोर मिल गया x, y एडमिशन कर दिया, स्कोर मिल गया y। ओके, दोनों का लिया, कोएफिशिएंट को रिजल्ट लिखा, सिंपल r का प्रोडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर हाई है टेस्ट है। लेकिन इसमें दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, सेम टेस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल बनाना बहुत ही टफ। इंटेलिजेंट टेस्ट जब पहले किया 1937 स्पीयर बिलियन साइमन, तो उसका 2 फॉर्म था, तब भी उसका रिलायबिलिटी उसी तरह से टेस्ट किया गया इंटरनेशनल। लेकिन इसको सेम टेस्ट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, सेम टेस्ट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। सेम टेस्ट बनाना कैसे बनाएंगे, डिफिकल्टी लेवल सेम रखना। इसके बाद कैसे मेजर करेंगे? हाँ, इसके बाद मेजर कर सकते हैं, बोलता हूं, बोलता हूं। इसके बाद आ गया स्प्लिट हाफ मेथड, तो सेम टेस्ट बनाना डिफिकल्ट है। इसके बाद एक ही टेस्ट बनाएंगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ऑड इवन सिंपल तरीका है, ऑड नंबर x, y नंबर y हो गया इवन, दोनों में सिंपल r अगेन कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपने ऑड बोला है, इवन बोला है, तो एक प्रश्न है क्या जो एक r निकला वो सफिशिएंट है, ठीक है। अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। कोई भी बोल सकते हैं, स्प्लिट हाफ समझ गया ना, स्प्लिट हाफ कोई भी बोल सकते हैं, ट्राई करके मैं हिंट देता हूं। स्प्लिट हाफ, एक ही टेस्ट बनाया, 2 बार हाफ कर दिया, जो टेस्ट का रिजल्ट निकला x and y कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आइडिया है ना प्रॉब्लम सबका, तो नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जो आया है रिजल्ट, इसका आया है हाफ टेस्ट का, डबल करना पड़ेगा। अच्छा, डबल कैसे करेंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं, एक फॉर्मूला है, उसको बनाया है स्पीयरमैन एंड ब्राउन, उसको बोलते हैं स्पीयरमैन एंड ब्राउन फॉर्मूला। मेरा यहाँ पर स्लाइड भी है, आप टेस्ट को कैसे फुल टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। भाई देखिए, तो नेक्स्ट में जाइए डायमेंशन मैंने नहीं बोल पाया टाइम के वजह से। जैसे रुकिए, जैसे क्रिएटिविटी मेजर किया, तो कैसे क्या मेजर करेंगे, क्रिएटिविटी एज अ होल, क्रिएटिविटी का डायमेंशन है ना, क्रिएटिविटी का डायमेंशन क्या क्या है, फ्लुएंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, कोलैबोरेशन। किसने बोला, ईपी जॉर्ज, कौन है, पायोनियर इन क्रिएटिविटी। इसी तरह हर गरीब का तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, एक्सपर्ट है, उन्होंने कैसे देखा वो स्टडी करके उसको बनाना पड़ेगा। हाँ, तो एक था एंजाइटी स्केल, उसका 6 डायमेंशन है, ओरी, जनरल एंजाइटी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक, डिप्रेशन। मींस अगर किसी का एंजाइटी मेजर करे तो ये सब मेजर करना पड़ेगा, डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट में चाहिए, नेक्स्ट में जाइए।
अच्छा वो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट में जाइए, सॉरी नेक्स्ट में जाइए। ए एक दूसरे टाइप का टेस्ट है, ओके, एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन नहीं है, आइटम नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, क्या है? सिचुएशन, एक सिचुएशन, केस, केस, तो केस का नहीं, सिचुएशन, ठीक है। क्यों है ये पॉजिटिव टाइप, एक इसके लिए रिस्क टेकिंग बिहेवियर, टू मेजर द रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कितना रिस्क ले सकता है उसी सिचुएशन में। बहुत सारे 15 सिचुएशन है, एक सिचुएशन डाल दिया, 5 ऑप्शन और 6 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में आपको अच्छा लगता है उसी में आपको देना है, ठीक लगता है, अच्छा नहीं ठीक लगता है, आप होते तो क्या है, ठीक है। एक खुद का मेरा पढ़ा हुआ है, इसी से एग्जांपल आगे भी जो देखा है तो वो भी मेरा ही है, तो इसको बोलते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी स्किल। बहुत सारे जगह पर वो यूज हो रहा है, जैसे कि इंजीनियरिंग, फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस की बहुत एप्लीकेशन है, तो उसको यूज करते हैं, क्यों रिसर्च करते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी। और नेक्स्ट में जाइए, इसको डिफरेंट है पूरा। उन्होंने प्रश्न किया है पैराग्राफ फॉर्म में आइटम का डिफिकल्टी कैसे करें, कौन सा प्रश्न कितना डिफिकल्ट है और कितना इजी है, हम उसको कर सकते हैं। और सपोज वी आर प्लानिंग टू प्रिपेयर और कंस्ट्रक्ट एंड स्टैंडर्डाइज वन अचीवमेंट टेस्ट, especially achievement test, then we have to establish the difficulty value discrimination power and item validity of an item. कैसे? 3 steps: item difficulty value, item discrimination power and item validity. Statistically एक आइटम कितना कठिन, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इससे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। So then how to measure the difficulty level? वो सिंपल फॉर्मूला है इसमें, डिफिकल्टी वैल्यू तो r डिवाइडेड बाय t into 100। 100 जन में कितने रेस्पॉन्स ठीक किए हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, उसी से डिफिकल्टी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सर ये तो एग्जाम इवैल्यूएशन के बाद आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, आंसर से चेक करने के बाद है ना पता चला ना, वो देखिए आपको समझ में आना चाहिए। आप ये जो मैं बोल रहा हूँ टूल्स बनाने के लिए, आप एकदम ठीक बोले, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। सपोज आप टीचर है, प्रश्न बना रहे हैं, आपका तो ये संभव नहीं है कि साथ आइटम का डिफिकल्टी वैल्यू कितना है, करते हैं नहीं करते ना, मॉडरेशन में भी नहीं होता। लेकिन जब आप स्टैंडर्डाइज करेंगे, पब्लिश करेंगे, मार्केट में इसको परचेज करेगा, तब करना पड़ेगा। But as a teacher, when It's not possible. Possible in rare cases, not all time. हर वक्त नहीं कर सकते। there is a question, but when a student is appearing in repeat exam particularly, so it might be an ethical part that the students who have faced the question paper on a regular basis, the standard of the question, and if you are getting this new concept that is difficulty level, right? So it should be at par the repeat exam as well as this one. Or there might be a little bit of flexibility. It should not be easy go so that students are getting motivated to. हाँ, वो तो आप कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। नेक्स्ट में जाइए, नेक्स्ट में जाइए, कर सकते हैं आप, मैं बोल देता हूँ। नेक्स्ट में जाइए, नेक्स्ट में रिलायबिलिटी जो मैंने बोला उसका एक, नेक्स्ट में जाइए, ठीक है, 4 सिस्टम बोल दिया, टेस्ट रिटेस्ट, पैराग्राफ फॉर्म्स, स्प्लिट अप एंड रेशनल इक्विवेलेंस। नेक्स्ट में जाइए, यही में नहीं वो वाला, यही है, देखिए स्पीयरमैन क्राउन फार्मूला जो मैंने बोला। सपोज कंसीडर एन एग्जांपल, एन 80 आइटम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड to 35 students and the test is divided into 40 items or 40, even 40 हो गया हाफ टेस्ट। in parallel parts, the correlation between the score on the 2 parts is 0.70। correlation करता r का मान 0.70, किस टेस्ट का? हाफ टेस्ट का। कैसे? स्प्लिट अप मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड से 40-40 का, तो जो 0.70 निकला वो किसका? हाफ।
अभी क्या करना पड़ेगा, फुल टेस्ट का रिलायबिलिटी कैसे करेंगे, कोई फॉर्मूला, लेट दिस कंसीडर्ड बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय R11 and what is the reliability of the whole test or total test. Spearman bound formula, simple formula, RT equal to 2 into R11 1 plus R11, RT equal to 2 into 0.70 and 1.70, that is 0.82. full test reliability very high 0.82 और दोबारा करता हूं मैं, ओके नेक्स्ट। ये और एक चीज है, factors affecting reliability. There are so many factors which affect reliability. One factor is length. However, चलिए इसको next. Validity क्या है? बस रुकिए. Validity. What is validity? Validity means a test designed to measure what? a test is valid when it measures what it intends to measure. अभी एक टेस्ट ले लो, उदाहरण सपोज आप एक हिस्ट्री के अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं, वो टेस्ट हिस्ट्री का, उस टेस्ट में हिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। अगर उस टेस्ट में आप हैंडराइटिंग का मेजर कर दे, आप जियोग्राफी का कोई कंटेंट कर दे, क्या वो वैलिड होगा? वो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हम मेजर कर सकते हैं? हाँ, स्टैटिस्टिकली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजर क्या है? देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स। Procedure like as reliability, content validity, predicted validity, concurrent validity, different types of validity we can establish. Next, norms. We have to establish the norms. Why? For compare, for interpret, for analyzing. We have to establish norm for our tools of test. Different types of norm is the age norm, grade norm, mean also a norm. Average performance, okay, Z-score, norms, percentile is a norm. How we can use percentile for our evaluation purpose? Suppose P25, P50, P75, okay, percentile 25, percentile 50 and percentile 75. Below the P25 will be treated as score 25 to 50 medium, above percentile 75 is high category. In this way, you can categorize our score also and interpret our results. Z-score norms. Here we follow Z-score norms. Next. Reference. If you want to standardize one test, you have to mention reference in the manual. And I have to write manual very meticulously and precisely. Why? Because it will be published. And there are so many benefits. एक टेस्ट आप अगर बनाएंगे, उसका बहुत सारा benefit. Number one benefit for careers. Because it's an innovative, treat as an innovative work, your own contribution. दूसरा, research में होकर कर सकते हैं आप, अपना thesis में एक टेस्ट बना लीजिए। 90s, 60s and 70s में जितने सारे सोशल साइंस का बहुत सारे PhD होता था, थीसिस होता था, कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोशल साइंसेस वन टेस्ट है, फिगर कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। यही टॉपिक है, मेरे पास पूरा डेटा है। तो आपका PhD का भी वैल्यू आ जाएगा थीसिस का। नंबर 2 या 3 उसमें ISBN नंबर देगा, तो आपका खुद का एक ISBN हो जाएगा। नंबर 4, अगर आप इसको पब्लिश करते हैं तो आपका सब कंपनी का एग्रीमेंट होगा। इसी एग्रीमेंट के हिसाब से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट, आप रॉयल्टी में जा सकते हैं और एक वन टाइम सेटल करने भी जा सकते हैं, लेकिन वो खरीद लेगा फुल टाइम के लिए, ठीक है, वो पब्लिश करते हैं वाला ISBN मिलेगा, वो है तो एक पॉपुलैरिटी देगा दुनिया में, और आपका टेस्ट बिक्री होगा, सही होगा। इसके बाद क्या बेनिफिट है आपका, आप उसी टेस्ट को पेटेंट भी कर सकते हैं। जब सेल होगा कंपनी के साथ एग्रीमेंट होगा स्टाम्प पेपर में, ठीक है, तो आप इसको पेटेंट भी कर सकते हैं, तो पेटेंट भी एक क्राइटेरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट है। यही कहां से आता है? आप इवैल्यूएशन के, आप टीचर हो, फैकल्टी हो, आप यूज करें ना करें रिसर्च में तो कर सकते हैं। आप यूज करने के बाद जब सीखेंगे तो बाहर बहुत सारे काम में अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो इवैल्यूएशन एक ऐसा है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड दिस थिंग्स टूल्स
एंड असेसमेंट बहुत बिग चैप्टर में हमने डिस्कस नहीं किया क्वेश्चन बैंक, सेमेस्टर सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, क्या मेरिट्स है, क्या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एप्रोप्रिएट है या नहीं है, कैसे चॉइस सिस्टम को एप्रोप्रिएट किए, क्या सेमेस्टर सिस्टम का डिमेरिट्स क्या है, 2 दिन क्लास के बाद ही आ जाता है एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन परीक्षा, वो सब आता है एक ही अम्ब्रेला में, वो है इवैल्यूएशन। ओके, हाउ दैट हमने जितने दूर उसको किया है आज डिस्कशन, अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत है, तो क्या क्या किए हैं, रिकैप्चुलाइजेशन हमने देखा है, मेजरमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या फंक्शन करते हैं इवैल्यूएशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, लर्निंग आउटकम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ब्लूम्स ने क्या बोला है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कॉग्निटिव डोमेन कैसे करते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स कैसे हम क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। ब्लूम्स ने बोला है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएट कैसे करें, इफेक्टिव डोमेन का इंपॉर्टेंस क्या है, कर्मों का स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्लासरूम एटमॉस्फेयर में, लेसन प्लान में कैसे ला सकते हैं, साइकोमोटर डोमेन। अच्छा, इवैल्यूएशन में टूल्स कैसे यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स है, उसके अंडर में टूल्स है, तो टूल्स के हम कैसे यूज करें। अच्छा, टूल्स हमारे पास खरीद सकते हैं, नहीं खरीदेंगे, रिसर्च के लिए यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, वेरी नेचुरल, ये बहुत स्मॉल से हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, लेकिन हमको मालूम है जो बहुत सारे क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करना पड़ता है। क्या क्राइटेरिया, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, वो सब करके मैनुअल करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह हमने करें तो इवैल्यूएशन सिस्टम को हम अच्छा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीसीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीसीए कैसे कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूअस की है आपको मालूम है, कॉम्प्रिहेंसिव कवर ऑल द डायमेंशंस एंड कंटेंट्स एंड डोमेन्स, सो इट इज कॉम्प्रिहेंसिव। इट कैन बी कवर्ड स्कॉलास्टिक एंड स्कॉलास्टिक कैटेगरी। ओके, इसी हिसाब से पेडागोजी भी चेंज कर सकते हैं, टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी एंड करिकुलम चेंज कर सकता है। Evaluation is a vital and integral part of teaching learning process. So important. So CCA is so important. How we can measure attitude of a teacher towards CCA? ये tools भी बना सकते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले हमने tools भी बनाए थे, हम अभी भूल गए। चलिए, आओ देखिए थोड़ा नेक्स्ट, ये हमारा थोड़ा सा tools स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, just only for your motivation. I'm showing you risk-taking scale, continuous and comprehensive evaluation, attitude scales, school dropout causes scales. अब different company में published हुए हैं. Anxiety scale you can also use in your research work also. Internet and social networking side attitude scales, teaching effectiveness scales, and emotional intelligence scales, frustration scale, examination anxiety scales. Okay. So this is up to this. Thanks to all of you. Thank you. Short, but so many things. प्रश्न पूछिए। Actually, in our college, we are following this CCE. The evaluation paper is asked to evaluate through CCE. But we failed to do so, and I think we learned last 1.5 hours so many tools and techniques. But now as a teacher, after going back to our institution again, so what is the take message? These are the messages you should take with you that you can follow this CCU effectively. अच्छा, समझ गए। तो इसके बाद हमें तो आपका प्रश्न का उत्तर दे देंगे, एक वीडियो देंगे, ठीक है, छोटा सा वीडियो है, तो वो देख, मैंने सोचा कि वो नहीं दिखाएं, लेकिन आपने प्रश्न छेड़ दिया है तो उसको तो दिखाना पड़ेगा।
You just try by your own. Okay. सिस्टम आपको प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है अभी तक, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वही ले लीजिए, वही आपने प्रश्न पूछा है, या तो बहुत सारे चीज होंगे वही। आप जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हो वहां पर तो इंटरनल है, वहां पर कोई हेड होंगे या प्रिंसिपल होंगे, उनसे परमिशन जरूर ले लेना, उनसे बात कर लेना, कन्विंस कर लेना, रेपुटेशन फिनिश कर लेना, वो भी पार्ट में ही है। ठीक है। सपोज एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इंटरनल 30 मार्क्स का, वहां पर सेट चलता है एक असाइनमेंट और शॉर्ट टेस्ट 15 आप इसको 4 5 6 में डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे? आप सिर्फ असाइनमेंट और शॉर्ट टेस्ट में नहीं लेंगे, आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ले लीजिए स्टूडेंट, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका एक स्किल्स डेवलप हो जाएगा। आप एक वाइवा ले लीजिए, पूरे दिन बात यूपीएससी में, पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी उधर जाएंगे, आप उनको एक्सपर्ट कर लीजिए, वो जो देंगे ना तो आप डिफरेंस देखेंगे। एटलीस्ट स्टार्ट कर लीजिए, एबीपी कम है, 30 मार्क्स को 4 में डिवाइड कर दीजिए, वो भी सीसीए में आ जाए। अच्छा, किसी बार एक क्विज दे लीजिए ना, आप क्विज बहुत करिए, खुद भी कॉलेज में जब स्टूडेंट परीक्षा होती है तो क्विज ले लीजिए, टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए, रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। कर सकते हैं इसी तरह आप खुद इनोवेटिव, ये टीचर्स क्रिएटिविटी इज हाईएस्ट क्रिएटिविटी। रुब्रिक्स भी कर सकते हैं, रुब्रिक्स तो मॉडल है कि इवोल्यूशन टूल से, अब वो करिए, उनको आगे के काम लगेगा रुब्रिक्स, एक असाइनमेंट में रख दीजिए रुब्रिक्स, आगे एक इंटरनल में। ठीक है, इस तरह से करिए। समझ में आया? कोई और प्रश्न? अच्छा हुआ है सर ने मेरे 2-3 घंटा किया, नहीं तो नहीं होता, लेकिन भाई पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी मैं चला है। I believe I appreciate. First of all, thank you so much for the comprehensive presentation. And my focus lies again on CCA. CCA is as finished our team itself is on NEP 2020. It's one of the main focus. And besides NEP, also focuses on core curricular activities. Now you have told, shared with us the various ways of setting questions and internals, how to conduct and all that. Everything is there. But as a faculty, our priority should be research and academic. But at times we are also engaged so much in administrative work. Students also, they have to perform co-curricular activities. So what happens, irrespective of how much I plan, sometimes it's challenging for me to execute in the class. Practically, my students are exhausted because they have 5 papers of project, and every paper has different way of conducting the test internal. They have to be, it's continuous, we have mid-semester, internal and end semester. So what is because you have been teaching also, what would be your advice for this challenging part as a faculty that we face in the institution? That is the co-curricular activities, how we can improve. Not just including it, that we have to focus. How we can include this part? That's NEP also said that students must have recreational time, co-curricular activities other than classroom teaching. Okay. I understand. Actually, definitely NEP suggested that not only academic qualities are essential, the life skills and co-curricular activities is highly essential for total personality development, whole development, comprehensive development. So the question is that how we can include these things in our CCE. You have rightly pointed out that one great education is suggested that what should be the teacher's role? Teacher's role is to give emphasis on unusual ideas and questions of the students in academic life. Unusual questions and ideas, not as usual. Why? To encourage innovative and creative thinking, and to encourage non-evaluated practice in the classroom atmosphere and schools. When we say this will be evaluated or examined, students are anxious. How will
we get scores and other things. So in CCE, there are some non-evaluated practices, which is co-scholastic activities, which is co-curricular activities, which are very, very essential. Then question comes, we can definitely include these co-curricular activities as a non-evaluated practices. A teacher can encourage or evaluate these things. Suppose a teacher can arrange one debate as an internal, one music or cultural program, definitely we can arrange for encouraging the student. Then question comes whether we can able to give marks or grades on them. In non-evaluated practices and co-curricular activities, there is not now, it's not included, but some institute is included as an optional papers or optional subject is included. Non-evaluated practice, but it must be there in evaluation systems for encouraging their talents, for encouraging multidisciplinary approach, for encouraging life skills, and for encouraging their total personality development. You are rightly pointed out. Okay? Any? Okay. आपने बोला था अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन तो आज करेंगे, पास में बात करेंगे, फिर अपने क्रिटिकल में सकता ये नजर में स्पीकर देगा तो ये आज कोई काम करो ये दूसरा मित्र से ही है और आज भी जैसा बोला जब आज करेंगे किसी टाइटल टेस्ट मान लीजिए तो ये कुछ दिन बात करेंगे हम डिफाइन कर सकते हैं इसके ऊपर आईक्यू क्या है अच्छा ठीक है एक्चुअली इंटेलिजेंस 15 साल के बाद और इंक्रीज नहीं होते फर्स्ट जब आप किसी का उम्र 15 साल हो जाएगा इसके बाद इंटेलिजेंस और डेवलप नहीं करेगा क्या डेवलप करता है एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस हुआ 14-15 साल के उम्र के लोग के साथ बात करके देखेंगे उनका लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग बात कैसे आप कर सकते हैं पर उम्र का ऐसा नहीं इतना बड़ा बात करते हैं कि इंटेलिजेंस हाई लेवल में पहुंच गया एक बात दूसरा चीज बाकी सोशल और साइकोलॉजिकल डायमेंशन की तरह ये भी मेंटल एक्टिविटी है इंटेलिजेंस जब मेजर करते हैं तो क्या मेजर करते हैं एक्चुअली इस फैन के भीतर क्या है कैसे ढूंढना है इसका भीतर कैपेसिटर है ऑयल है क्या नहीं तो इंटेलिजेंस में के भीतर क्या है क्या मेजर करते हैं इंटेलिजेंस के भीतर है जब मेजर करते हैं तो मेमोरी एक डायमेंशन arithmetic ability, reasoning, logical thinking, comprehension, ये सब करके और जितना याद है वो सब मेजर करते हैं ठीक है वो सब तो मेंटल एबिलिटी है कि नहीं मेंटल डायमेंशन तो आज जब उसको मेजर करेंगे थोड़ी दिन बाद मेजर करेंगे तो उसका चेंज आता है क्यों नहीं उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा ना इसके साथ Suppose आपने एक बोला है ना आप उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका इंटेलिजेंस ठीक है अगर नहीं सॉल्व करते हैं इंटेलिजेंस कम है 7 दिन गैप दिया इसी बीच में इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसका सेफ से सॉल्व कर लेगा इंटेलिजेंस ज्यादा होगा लिमिटेशन है सोशल साइंस के साथ समझ में आ गया नहीं तो कैसे बात कीजिए मुझसे नहीं ठीक नहीं साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट ने क्या बोला कि कितना इंटेलिजेंस होने से आपको माना जाएगा कि आप इंटेलिजेंस पर्सन और कितना नहीं होने से आपको बोला जाएगा कि आप इडियट हो या पोर इंटेलिजेंस और कितना होने से आप ब्राइट गिफ्टेड टैलेंटेड एक स्केल क्या ए जनरली मेजर जब करते हैं तो 100 को नॉर्मल माना गया ये उन्होंने जैसा बोला एक बेल शेप का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी उसके मिडिल में है 100 लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस 100 10 20 30 40
उधर 90, 80, 70, 60 ये मिडिल है, कोई भी बोलता है 90 से 110, कोई 100। तो ये है तो जनरल आईक्यू है, मीडियम आईक्यू है, मीडियोकर लेवल आईक्यू। एवरेज इंटेलिजेंस उधर जाएगा तो एवरेज से हाई और इधर आएगा तो कम और नेक्स्ट में धीरे धीरे कम इडियट तक जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जन्म ले लिया है तो इंटेलिजेंस जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक स्केल है, उसी के हिसाब से आपका आईक्यू जो मेजर करते हैं तो आईक्यू इस स्केल से जीरो से मतलब आपको माने एक पर्सन को मतलब एमआर रेंज का ओ समझ गए। तो बिलो 50 या 60, बिलो 60 और 50 से आवाज वो लोगों का मतलब मान लीजिए कोई मतलब केस है जिनका उम्र है 7 साल या 8 साल, तो हम आईक्यू टेस्ट करवाए, स्कूल को जाए मान लीजिए 50 या 60, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आता है, तो क्या 60 से वो एमआर से थोड़ा आगे जाएगा क्या? देखिए इसमें और चीज है, अगर उसका एमआर है तो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस से उम्र जितना जाएगा लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाएगा। इसके हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, कुछ सेटअप होगा ना। मान लीजिए जो विलेज में लोग होते हैं वो लोग सुन लीजिए, तो ठीक ही बोला है, इसका खत्म नहीं होगा, एकदम सही बोली। अमेरिका में एक टेस्ट बनाया, क्या उसी यही टेस्ट इंडिया में एप्लीकेबल है? क्यों? कल्चर डिफरेंट है ना। अमेरिकन टेस्ट स्टूडेंट का, इंडिविजुअल का, कैपेसिटी, बिलोंगिंग, ग्रोइंग अप से वो सब अलग है, कल्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग, सब कुछ अलग है। तो वही टेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, उसी टेस्ट कंस्ट्रक्टर का हिम्मत है तो वो बनाएगा कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, तो सेम टेस्ट एप्लीकेबल होगा इंडिया में। उदाहरण के लिए लीजिए, एक साइकोलॉजिस्ट एजुकेशन नाम ईपी टॉरेंस, उसने एक टेस्ट बनाया नाम क्रिएटिविटी। वो किंडरगार्टन से ग्रेजुएट लेवल हर अनुसार एक ही टेस्ट से मेजर होता है और कल्चर फेयर है। कोई भी स्टेट में जाइए, कोई भी जगह पे जाइए, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका मैनुअल है इतना, उसको पढ़ने में लग जाता है 5 से 7। मैनुअल कैसे बनाना है यही सोचता हूँ, करवा सकता है पर पढ़ नहीं पाया, कैसे बनाया वो भी मैं सोचता हूँ, कैसे बनाया, कितना मेहनत किया हो। ऐसे और भी है, रैमोस मैट्रिक टेस्ट इंग्लिश पैसा करता है, कल्चर है, मैंने मेरा काम किया। रैमोस मैट्रिक टेस्ट कल्चर है, कल्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कितना डीप है, उन्होंने जो बनाया उसका मैनुअल इतना मोटा, मैनुअल क्या क्या वो ही सब क्या, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, लॉ, ये सब क्या है, लेकिन कैसे किया है और क्या क्या है वो सब लिखा हुआ है। कितना डीप है। मैडम आप कुछ बोल रहे हैं? थोड़ा बहुत वो नॉर्मल के लिए, जो कि हमारे से लिए कैमरा मतलब इसमें मतलब 100 से नीचे है, उसका नीचे है, थोड़ा बहुत अच्छा है तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। वही बोलना। इससे किसने तो कुछ भी लेकिन अगर कुछ नहीं है तो कैसे? ये तो भगवान का देन है, जो हम चल रहे हैं सब। नेचर के साथ थोड़ा बहुत आगे जाता है, जी जी। थैंक यू वेरी मच।